السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جناب عبداللہ کشمیری۔ آج ہمارے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیاں اور قیامت کب آئے گی۔ کیا قرآن پاک میں یہ چیز موجود ہے کہ قیامت کی ڈیٹ کا تعین کیا جا سکتا ہے؟ کیا قیامت کی کچھ علامات ایسی کون سی ہیں جو اب ظاہر ہو رہی ہیں، یا ماضی میں ظاہر ہوئی، یا مستقبل میں ظاہر ہوئی؟ اور اسی طرح قیامت کے بارے میں جو مختلف محققین نے قرآن پاک سے، احادیث سے ریسرچ کی اور بتایا کہ فلاں سن میں قیامت آئے گی، اور قیامت سے پہلے کیا کیا چیزیں رونما ہوں گی، اس طرح کا بہت کچھ ہم کو سیکھنا ہے، سننا ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو مزید آگے چلتے چلتے کافی دلچسپ ہوتی جائے گی۔ تو سب سے پہلی ریکویسٹ یہی ہے کہ جو نئے ساتھی چینل پہ آئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیجیے، تاکہ ہمارا آنے والا نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم یعنی صحابہ اکرام کی ایک جماعت ہم آپس میں بحث کر رہے تھے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ایک دوسرے پارے سے سوالات کر رہے ہیں، اور قیامت کی کچھ علامات کے بارے میں وہ اس بارے میں ڈسکس ہو رہی ہے۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہ ہوگی۔ یہ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: قیامت اس وقت تک ہرگز قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دھوئیں کا، دجال کا، دابۃ الارض کا، سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، یاجوج ماجوج کا، اور 3 مرتبہ زمین کے ڈھنسنے کا ذکر فرمایا۔ ایک مرتبہ مشرق، ایک دفعہ مغرب، اور ایک مرتبہ جزیرۃ العرب میں، اور سب سے آخر میں ایک آگ کا ظاہر ہوگی، ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے کر جائے گی۔ اس کو صحیح مسلم نے باب الفتن میں، اچھا پھر سنن ابو داؤد، سنن ترمذی اور اس طرح مختلف احادیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کے اندر قیامت کی علامات وہ بتائی گئی ہیں۔ یعنی 10 نشانیوں کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک یہ 10 علامات قائم نہ ہوں تب تک قیامت قائم نہ ہوگی۔ اچھا، وہ 10 نشانیوں میں سے جو آپ نے سب سے پہلا ذکر کیا وہ دھوئیں کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، علامات قیامت پر بے شمار احادیث ہیں، اور مختلف احادیث میں مختلف جو ہے نا وہ ذکر موجود ہے۔ اب قرآن پاک کی طرف آتے ہیں تو سورہ دخان، دھواں، سورہ دخان، دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 10 اور 11 کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرب قیامت ایک دھوئیں کا ذکر فرمایا ہے۔ اچھا، ایک حدیث پاک میں کچھ اس طرح کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جیسا کہ یہ جو روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے صحیح مسلم اور سنن ترمذی اور سنن ابو داؤد کی، اس میں بھی یعنی جس کے راوی حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری ہے، اس میں بھی ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور امام مہدی کا نزول ظہور ہوگا، اور اس وقت یاجوج ماجوج سے جنگ ہوگی، دجال کا قتل ہوگا، اور یہ جو واقعات ہے اس میں تیر تلواروں کا ذکر ہے، گھوڑوں کا ذکر ہے۔ مطلب کہ پرانی ثقافت جو ہم 1400 سال پیچھے چھوڑ آئے ہیں وہ ثقافت کا ذکر آ رہا ہے، حالانکہ یہ قرب قیامت کا ہے۔ جبکہ ابھی جس دور میں ہم ہیں 2023 میں
2023 में, तो यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और मज़ीद जो साइंस है, जो साइंटिस्ट है, वो ये बता रहे हैं कि 2050 में तो हवा में उड़ने वाली कारें भी होंगी, वो आसमान जो है ना वो ज़मीन के अलावा दीगर सियारों के ऊपर भी प्लाट खरीदे जाएंगे और वहाँ पे भी मकान बनेंगे। अच्छा, इस तरह की यानी टेक्नोलॉजी आम हो रही है इस वक्त। तो याद रखें, एक हदीस पाक में है कि मस्जिद अक्सा से एक जंग शुरू होगी, जो जंग क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अच्छा, अभी भी जो है कि वो मस्जिद अक्सा में जंग चल रही है और इसके बारे में बेशुमार अरब लोग भी बता रहे हैं कि वो ये आखिरी जंग है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में इस वक्त तक 2 आलमी जंगें हो चुकी हैं। अब तीसरी जंग, ये जो धुआं है, धुएं के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वैसे जो धुआं होता है ना वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है, जबकि एटमी बम या मिसाइल वगैरह जहाँ पे पड़ते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल, तो वहाँ पर ज़मीन के से ऊपर जाकर एक धुएं की छतड़ी बन जाती है और वो छतड़ी यानी उसके अंदर चूँकि एक एटम के अंदर जब वो फटता है तो उसमें से 3 चीज़ें सामने आती हैं। नंबर 1 धमाका, जो आवाज़ से भी तेज़ होता है। नंबर 2 आग, तपश, कि वो जो तपश है यानी पहले तो धमाका बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिरा देता है, इंसानों को के कानों के पर्दे फाड़ देगा। उसके बाद एटम के अंदर आता है तपश, आग, जो कि जला देती है। और तीसरी चीज़ है उसके अंदर पाई जाने वाली गैसों का धुआं। ये धुआं जो है वो इतना गलीज और गंदा होता है कि जो ऊपर जाकर आसमान के ज़मीन के दरमियान में ये फैल जाता है और ये काफ़ी देर तक तहलील नहीं होता। अब इसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह दुखान में भी किया है, मुख्तलिफ सूरा के अंदर भी इस तरह के धुएँ का जिक्र है। अच्छा, हदीस पाक में भी जो जिक्र है कि क़यामत कायम होने के बारे में, जो हदीस में आपने शुरू में सुनी है, इसके अंदर भी जो पहली इलामत दिखाई गई है वो धुएँ की है। मतलब ये है कि याद रखें कि क़यामत से कबल ये जदीद तमाम टेक्नोलॉजी, ये तमाम साइंसी इजादात, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और वो ख़त्म कैसे होगा? कोई आलमी जंग होगी, एटम चलेगा और एटम चलने की वजह से ये तमाम इंसानों की एक 80% आबादी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, फिर जदीद टेक्नोलॉजी ये सारी ख़त्म हो जाएगी। जब टेक्नोलॉजी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी तो फिर वही सिस्टम आएगा, यानी वो धुआं जब आएगा, वो धुआं आने के बाद हदीस पाक के दूसरे अल्फाज हैं कि धुआं और उसके बाद दज्जाल का आना, ठीक है, फिर दावतुल अर्ज़ और फिर उसके बाद सूरज का मगरिब की तरफ से तलू होना। अच्छा, ईसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होना और इस तरह के वाक़यात। तो याद रखें कि जब भी क़यामत आएगी, अच्छा, बाज़ उलमा ने इसको क़यामत के जो कुरान पाक में, जैसा कि सूरह दुखान है, सूरह दुखान के बाद सूरह क़यामा में और इस तरह की मुख्तलिफ सूरह के अंदर जो आयात आती हैं, उनके बारे में एक फ़ारूक अल्लामा मुफ्ती फ़ारूक साहिब हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की तायद की है कि बल्कि उन्होंने तो सन बताया है कि 1465 हिजरी तक तमाम टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। जैसे मौजूदा हालात जा रहे हैं और ये पूरी वर्ल्ड जो है वो जिस तरफ जा रही है, उनके जाने का जो रुख है, जो बन रहा है, जो जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उनसे ये चीज़ पता चल रही है कि तकरीबन 1462 तक जो ये यानी अगले 15 से 20 साल या 25 साल कर लें, इसके अंदर ये तमाम टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी अगर ख़त्म हो जाती है तो कैसे ख़त्म होगी? कोई आलमी जंग होगी और उस आलमी जंग के नतीजे में तमाम टेक्नोलॉजी ख़त्म होने के बाद
वही पुराने गधे और घोड़े पर सवारी, ऊँटों और हाथियों वाली सवारियाँ, और वही तीरों तलवार से मुकाबले, क्योंकि तमाम टेक्नोलॉजी जब ख़त्म हो जाएगी तो क़यामत के करीब। अच्छा, फिर अल्लाह तबारक व तआला सब मुसलमानों का ईमान सलामत रखे कि उस वक्त क़यामत के करीब जो है ईमान सलामत रखना। अब इसके बारे में भी आपको बताता चलूँ कि ये दुज्जाल के साथ जंग किस टाइप की होगी। ये तीरों तलवारों की वाली होगी, या मिसाइलों वाली होगी, या बंदूक और कलेशनकोफ वाली होगी, या कि अकीदे वाली होगी, सोच वाली होगी। क्योंकि ये बात याद रखें कि जिस तरह के मशहूर है ना, कब्र में 3 किस्म के सवाल होंगे, मा रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़िर रजुल, जबकि सही हदीस से यही साबित होता है कि सवाल एक ही होगा, मा रब्बुका। ये तो भाई याद रखें कि कब्र के अंदर मा रब्बुका ये सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली तो बात ये है, क्योंकि ईसाई भी है, मोहिद्दीन भी है, यहूदी भी है, वो अक्सरी खुदा को तो मानते हैं, हिंदू भी खुदा को मानते हैं, भगवान कहते हैं हिंदी जुबान में, भगवान तो खुदा को तो मानते हैं, सही। अच्छा, मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? अब ये बताएं कि जो ईसाई मजहब पर मरा है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजहब तो हक था। अच्छा, यहूदी मजहब। अच्छा, फिर इसी तरह मजहब के बारे में भी जो है वो बात जमती नहीं है। हाँ, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़िर रजुल, ये एक सवाल है कि इसके बारे में सवाल ये इम्पोर्टेंट है। यही जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाला सवाल यही है, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़िर रजुल। यही पुलसरा से गुजारने वाला सवाल भी है और गिरा देने वाला भी है। यही हौज़े कौसर को पिलाने वाला भी है और हौज़े कौसर से प्यासा रखने वाला भी है। यही नेकियों के पलड़े को भारी करने वाला भी है और हल्का करने वाला भी है। मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़िर रजुल, तुम इन शख्सियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे, क्या अकीदा रखते थे, कैसी मोहब्बत थी, इनके फरमान पर, इनके किरदार पर तुम्हारा क्या अकीदा था। तो अब जिसने कहा कि मैं तो इनका गुलाम हूँ, वो यकीनन बख्शिश है, सही है। तो इस तरह क़यामत की इंशाल्लाह अगली हम निशानियाँ आपसे मज़ीद अगली गुफ्तगू में हम बात करेंगे, दुज्जाल के साथ जंग कैसी होगी और किस चीज़ से होगी, क्या कलेशनकोफ के साथ, या आइटम के साथ, या तीरों तलवारों के साथ, या कोई और तरीके से। तो इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे कि दुज्जाल के साथ लड़ाई कैसे होगी, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि याजूज माजूज के साथ जंग करने का क्या तरीक़ाकार होगा, और क़यामत कौन से सन में आ रही है। यानी कि वो तो एक है ना कि एक आपको मैंने बताया कि एक अल्लामा साहब ने 1462 बताया है, लेकिन 1462 से हटकर कौन सा सन होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सी तारीख होगी, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में हमें इशारे दे दिए हैं कि क़यामत कब आएगी और उसकी तैयारी कब और कैसे और किस तरह करनी है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को क़यामत के उन से महफूज फरमाए। और ये आखिरी एक बात याद रखे कि क़यामत के बारे में हदीस पाक में है कि बदतरीन लोगों पर क़यामत कायम होगी।